آزاد کشمیر کے بیس کیمپ میں موجود ہونے پر فخر ہے۔ ہم نے کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرنا ہے۔ کشمیریوں کے خلاف کسی بھی قسم کی بات برداشت نہیں کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مظفر آباد میں اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ ہم نے کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرنا ہے۔ کشمیریوں کے خلاف کسی بھی قسم کی بات برداشت نہیں کریں گے۔ پاک فوج کے خلاف ہونے والی کسی بھی بات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاک فوج نے مودی کو عبرتناک شکست دی۔ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ عوامی حقوق کے نام پر اشتعال انگیزی پھیلائی جا رہی ہے۔ کالعدم کمیٹی کی روز سے عوام کی معمولات زندگی متاثر کر رہی ہے۔ سیکرٹری داخلہ آزاد کشمیر چودھری گفتار حسین کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ کالعدم کمیٹی نے اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ کالعدم کمیٹی کا اصل مقصد امن، معیشت اور ریاستی استحکام کو نقصان پہنچانا ہے۔ طلباء کو احتجاج کا حصہ بنانا نئی نسل کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام کی زندگی اچھی رن بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے سیاسی جوڑ توڑ میں تیزی آ گئی۔ استحکام پاکستان پارٹی اور مرکزی مسلم لیگ نے لاہور کی مہاجرین کی 2 نشستوں پر مشترکہ امیدواروں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ دونوں جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ کشمیر کاز اور 2 قومی نظریے اور پاکستان کے استحکام کے لیے مل کر انتخابات لڑیں گی، جبکہ شہداء کی قربانیوں پر کسی قسم کی سیاست قبول نہیں۔ صدر IPP پنجاب رانا نذیر احمد کا کہنا تھا کہ مرکزی مسلم کی قیادت کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارا اور ان کا نظریہ ایک ہے۔ دونوں جماعتیں 2 قومی نظریے اور پاکستان کی سلامتی پر یقین رکھتی ہیں۔ آزاد کشمیر میں کالعدم انتشاری کمیٹی کے مسلح جتوں سے متعلق سنگین دعوے سامنے آ گئے۔ مسلح عناصر نے شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ بھاری اسلحے سے فائرنگ، املاک کو آگ لگانے اور دکانوں کی جبری بندش کی گئی۔ پولیس، رینجرز اور دیگر اہلکاروں پر حملے کے متعدد ویڈیو شواہد سامنے آ گئے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے معصوم عوام کو بطور ڈھال استعمال کرنے کے لیے مسلسل اشتعال انگیزی پر اکسا رہی ہے۔ عوامی حمایت میں واضح کمی اور احتجاج کی بدترین ناکامی کے بعد کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ اسلام آباد پولیس کے ملازم پر کالعدم کمیٹی کے شرپسندوں کا تشدد۔ آزاد جموں و کشمیر پولیس کی پریس ریلیز جاری۔ پریس ریلیز کے مطابق 14 جولائی کو راولہ کوٹ میں گوئی نالہ افسر مارکیٹ میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے اسلام آباد پولیس کے ملازم احتشام مسیح کو زبردستی گاڑی سے اتارا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے اسلام آباد پولیس اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنایا اور گمراہ کن ویڈیو بنا کر پھیلائی۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج کے خلاف علاقے میں مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ آپریشن شابان میں مزید 3 دہشت گرد جہنم واصل، مجموعی تعداد 88 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مجموعی طور پر 126 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ فوج سے متعلق تقریر پر اندراج مقدمے کی درخواست۔ مولانا فضل الرحمان کو نوٹس جاری۔ اندراج مقدمے کی درخواست ایڈوکیٹ منظور قادر کی جانب سے دائر کی گئی۔ SHO سول لائن اور مولانا فضل الرحمان کو 28 جولائی کے لیے نوٹس جاری۔ عدالت کا پولیس کو بھی 28 جولائی کو رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ رواں سال معاشی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کا سال ہوگا۔ پاکستان کے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR اصلاحات اور ٹیکس نظام میں بہتری سے متعلق جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں جاری اصلاحات اور ٹیکس نظام میں بہتری پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو FBR کی کارکردگی اور جاری اصلاحات کے نفاذ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ شوگر، سیمنٹ، ٹوبیکو، ٹائلز اور فرٹیلائزرز کی صنعتوں میں پروڈکشن مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب مکمل ہو چکی ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت E&P سیکٹر سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تیل و گیس کی آف شور اور آن شور تلاش کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ گیس سیکٹر میں اصلاحات اور طویل المدتی ترقی سے متعلق مطالعات پر بریفنگ دی گئی۔ سرکولر ڈیٹ کے حل اور مقامی گیس پیداوار بڑھانے کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ LNG سپلائی کو مقامی پیداوار کے ذریعے بہتر بنانے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ملکی تیل و گیس کی پیداوار میں اضافہ حکومت کی توانائی سلامتی کی اولین ترجیح ہے۔ حکومت E&P سیکٹر کو محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी, ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू का, ईरान में तवानाई के अहदाफ को आखिरी मरहले में देखा जाएगा। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। कहा खलीजी रियासतों टोल टैक्स देने के बजाय अमेरिका में सरमायाकारी करेंगे। ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सदर का रद्द अमल। ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरानी सदर का बयान, कहा कि ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई के मुताबिक अब कोई मफाहमती याददाश्त अमल में नहीं रही। ईरान की तवानाई बरामदात रोकी गई तो मशरिक़ वस्ता से तेल और गैस की तरसील भी मुतासर हो सकती है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। एक बयान में पासदारान इनकलाब का कहना था कि खित्ते से तेल और गैस की बरामदात या तो सबके लिए होंगी या फिर किसी के लिए नहीं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कई रोज से जारी जवाबी कार्रवाइयों और आबना हुर्मस पर असर व रसूख कायम करने की कोशिशों ने खित्ते में एक बार फिर बड़े पैमाने पर जंग के खदशात को बढ़ा दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जुलाई को ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया था। खलीज से तेल, गैस और दीगर मसनूआत की तरसील में अमरीकी फौज का किरदार अहम है। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का बयान, कहा कि ईरान के साथ कुछ भी हो, हमें ये यकीनी बनाना होगा कि खलीज अरब से अहम मकदार में तेल, गैस और दीगर मसनूआत की तरसील जारी रहे। अमरीकी फौज तरसील जारी रखने का काम अंजाम दे रही है। अमरीकी फौजी सरगर्मियां बढ़ रही हैं और ईरान की सलाहियतों को कमज़ोर किया जा रहा है। ये कोशिशें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। होर्मुज़गान में अमेरिका हमला संगीन जंगी जुर्म है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई का बयान, का अमेरिका हर रोज़ ईरान के खिलाफ दुश्मनी का नया पहलू जाहिर कर रहा है। ईरानियों के खिलाफ अमरीकी जराइम की फहरस्त मुसलसल तवील हो रही है। होर्मुज़गान हमला अमरीका के जंगी जराइम की ताज़ा तरीन मिसाल। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर और एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इंसानी बहरानों से निपटने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को सराहा। 2022 के सैलाब के दौरान पाकिस्तान की माउनत पर अक़वाम मुत्तहिदा का शुक्रिया अदा किया। टॉम फ्लेचर ने गजा की इंसानी सूरत हाल और इमदादी चैलेंजेस से वज़ीर आज़म को आगाह किया। अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद के लिए पाकिस्तान के ताउन को सराहा। ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया गया। पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल नौजवानों की जदीद तालीम, फनी महारत और पेशा वराना तरबियत से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों की हुनरमंदी और पेशा वराना महारत के आलमी दिन पर पैगाम, कहा मसनूई ज़हानत, डिजिटल जिद्दत और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के दौर में आलमी मयार की महारत ही तरक्की और रोज़गार की ज़मानत है। हुकूमत ने न्यू टेक को जदीद तकाज़ों से हम आहंग इदारा बनाया है ताकि नौजवानों को आलमी मयार की तरबियत और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा स्नात फराहम की जा सके। इस्लामाबाद में 17 और 18 जुलाई को पाक चीन फार्मास्यूटिकल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होगी। SIFC की मावनत से सेहत और फार्मा शोबे में नई सरमायाकारी की राहें खुलने लगी। फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी में पाक चीन ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें और सरमायाकारी के खुसूसी सेंटर्स मुनक्किद होंगे। टेक्नोलॉजी की मुंतकली, मुकामी पैदावार और मुश्तरका मंसूबों पर तबादला ख्याल होगा। कॉन्फ्रेंस हेल्थ केयर निज़ाम की जदीद कारी और फार्मा सनत की मुसाबकत बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मंडी बहाउद्दीन के अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने मुतालिका सूबाई हल्कों PP 42 और 43 के अवामी ज़रूरियात और मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अरकान असम्बली के पेश करदा अवामी मसाइल हल कराने की हिदायत की है। रुकने सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला मरीम नवाज के छोटे बड़े शहरों की ब्यूटिफिकेशन को भी सराहा। मुलाकात में वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर अजला के लिए मजीद इलेक्ट्रो बसें भी ला रहे हैं। पाकिस्तान में गडानी शिप यार्ड पर 8 साल बाद शिप रिसाइकलिंग का अमल जारी है। रिसाइकलिंग के लिए 7 जहाज गडानी शिप यार्ड पर लंगर अंदाज। हुकूमत ने शिप रिसाइकलिंग को बाज़ाब्ता सनती दर्जा दे दिया। गडानी के 16 में से 9 शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स में बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक अपग्रेड। रिसाइकल होने वाला हर जहाज कौमी मईशत में तकरीबन $2.5 करोड़ अमरीकी डॉलर का इजाफा करेगा। गडानी मुकम्मल फाल होने पर
मुल्क की स्टील स्क्रैप की 30% जरूरत पूरी करेगा। मरीम नवाज का इनकलाबी इकदाम, चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा, कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का भी ऐलान। मुजवजा प्रोसेसिंग जोन में 200 से ज्यादा सनती यूनिट्स कायम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इफ्तिताह करते हुए खिताब, कहा कुदरती वसाइल कौम की अमानत है और उनकी पूरी दियानतदारी से हिफाजत की जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। इजलास चेयरमैन कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार की जेर सदारत हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी की रुकन सहर कामरान ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ताहम चेयरमैन समेत दीगर अरकान ने बिल की हिमायत की। इजलास में डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि वज़ीर आज़म को तकर्रियों समेत अहम फैसलों का इख्तियार होना चाहिए, जबकि चौधरी महमूद बशीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामूली मामलात के लिए हर बार काबीना इजलास बुलाना मुनासिब नहीं। डॉक्टर आकाश कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ, गिरफ्तार मुलज़मान में एक टीचर भी शामिल। वाक़े के बाद कमांड एंड कंट्रोल के निजी और सेफ सिटी कैमरों की जांच। डीआईजी साउथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें बड़ी कामयाबी मिली, 2 मोटरसाइकिलों के अलावा एक कार भी वारदात में इस्तेमाल हुई। पुलिस ने कार को डिफेंस पे रोका, 3 मुलज़मान को गिरफ्तार कर दिया। मुलज़मान का डिजिटल डाटा भी हासिल किया गया है। तीनों मुलज़मान आपस में राब्ते में थे। शाह फैसल कॉलोनी में डिजिटल नादरा ऑफिस कायम, खुशाइंद है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज सईमुर रहमान का शाह फैसल कॉलोनी में तज़ीन और आराइश के बाद नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर की इब्तिदाई तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज से 7 साल कबल नादरा के ऑफिस में शदीद परेशानियां थीं। जमात इस्लामी की जदोजहद की वजह से काफ़ी लोगों के मसले हल हुए। शनाख्ती कार्ड, मरदमशुमारी और वोटर लिस्ट एक ही इदारे के तहत होनी चाहिए। मरदमशुमारी को भी नादरा के साथ रजिस्टर्ड किया जाए तो धांधली रुक सकती है। हज 2027 से 2030 के लिए घर बैठे डिजिटल हज रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। नेशनल आईटी बोर्ड के तैयार करदा हज पोर्टल पर रजिस्टर्ड आज़मीन हज की तादाद 3.25 लाख से ज़ायद हो गई। हज पोर्टल से 2,83,000 जबकि मोबाइल ऐप के जरिए 43 पाक हज हज़ार और आज़मीन रजिस्टर्ड हुए। 2,35,000 अफराद ने सरकारी स्कीम जबकि 90,000 अफराद ने प्राइवेट हज स्कीम का इंतखाब किया। रजिस्टर्ड आज़मीन की में 1,91,000 मर्द जबकि 1,34,000 खवातीन शामिल हैं। और पाकिस्तानी निजात बरतानवी साबिक आलमी बॉक्सिंग चैंपियन आमिर खान आलमी फुटबॉल कप में फ्रांस और स्पेन के दरमियान सेमीफाइनल मैच देखने लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल किया गया। उनकी आमद पर स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। आमिर खान ने कहा कि लियारी फुटबॉल और बॉक्सिंग पसंद करने वाले लोगों का गढ़ है। लियारी में सलाहियत की कमी नहीं, कराची में भी जदीद बॉक्सिंग एकेडमी कायम करना चाहता हूं। बॉक्सिंग टैलेंट को आगे लाने के लिए हुकूमत के ताउन की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी और नबील गबूल ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है।